Yes, sir. These three lines we have discussed. This is the first one is intersecting lines. Second we have discussed this is parallel lines, and third we have discussed coincident lines. We have already discussed in the previous one. So we have given two equations, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and this is a2x plus b2y plus c2 equals 0. These are the two linear equations, or in two variables it is given to already us. And now we have to check if these lines are of which type. These are intersecting, or these are parallel, or these are incident. We made a relation that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Then we are saying the lines are intersecting, and if the lines are intersecting, then having unique solution. If the lines are a unique solution, it means having some solution. So this system is called the consistent. Okay. And the second one, if the lines are parallel, the what relation we have? This is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, and this type of lines are called the parallel lines. These lines are parallel lines, and parallel lines having no intersecting points, so we can say here no solution. If no solution, then we are saying the system is inconsistent. We know this one. And you can see the third one. Third one condition was this is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. This was the third condition, and these type of lines are called the coincident lines. These lines are called the coincident lines. If these are coincident lines, then what happens? Each and every point are common with these two lines, so we can say that there are infinite solution. Infinite many solutions. Okay? And this system is also called the consistent. We have already discussed these things in our previous videos. Okay? Now, अब हम इस एक्सरसाइज में क्या करना है? We are going to use this method. This is a1 upon a2, b1 upon b2. This one we are going to check whether the given lines are incident, intersecting or parallel. तो हम इस मेथड को यूज करेंगे अब अपनी अगली एक्सरसाइज में 3.2 में. जस्ट वी आर गोइंग टू रिकैप्चुलेट दिस थिंग्स के व्हाट वी हैव डिड इन द प्रीवियस वन. तो see here, now let's start exercise 3.2. the first question you can see here. All of you have your books. Open your books and then see exercise 3.2 question number first. This is question number first, exercise 3.2. 10 students. Okay. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. मतलब class 10th के 10 students हैं. Some are girls, some are boys. So we will let the number of girls be X. Sir, voice is not clear. Who is this? Sir, voice and video is both not clear. Sir, voice is not clear. Who is this? Sir, Divyanshu. Beta, let us see here. If voice is not clear, then the problem is this. I think might be with your net. ठीक है? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ. अगर voice clear नहीं आ रही, video clear नहीं आ रही, तो problem is with your net only. Here, no problem at all, because recently I have taken the previous session and the student faced no problem. तो ये प्रॉब्लम नेट की है. तो अगर कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, you will get the recording for this and you can watch this video after that. Okay? अभी क्लियर जितना हो रहा है उतना देख लो, जो नहीं क्लियर हो रहा you will get the recording at evening. Okay? Okay, sir. See this. Let the number of girls equals to X, number of boys equals to Y.
बिकॉज वी नो दिस इज अ टेक्निकल इश्यू एंड नेट की प्रॉब्लम के साथ देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, जो है हमारे पास यूज दिस, otherwise you will get the recording. Now number of girls are there, number of boys are there, and according to question the total students are, total number of students 10. This is 10 students are there. If total students are 10, we can say that x plus y equals to 10. This is the first equation we get here. And in next line it is given if the number of girls is 4 more than the number of boys, it means number of girls is equals to 4 more than number of boys. If we are saying the x number of girls are there, the boys are y, then x equals to 4 plus y. Y को transpose को इधर x minus y equals to 4. This is the second equation. Is it okay? Now you can see here we have two equations, x plus y equals to 10 and x minus y equals to 4. Two equations we have here. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से. तो फॉर फर्स्ट लाइन अब हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, सम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. सही है. अगर हम x के लिए 0 पुट कर दें तो y 10 हो गया, y के लिए 0 पुट कर दें x के लिए 10 हो गई. तो दिस इज अ वेरी सिंपल, we put it one time x equals to 0 and we got the value of y, and then put y equals to 0, then we got x. So similarly for the second, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं यही पॉइंट आपने पुट करना है. इट इज योर चॉइस, डिपेंड्स ऑन चॉइस, बिकॉज यू नो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन. नाउ सी द फॉर द नेक्स्ट लाइन, दिस इज x minus y equals to 4. मैंने y के लिए 0 पुट कर दी, y 0 हो गया, x 4 आ गया. मैं y के लिए 2 पुट कर देता हूं, 2 पुट कर दिया, 2 इधर गया, ट्रांसपोज गया, 4 प्लस 2 6 आ गया. तो मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, x y whatever. नाउ अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. we know that this is origin, this is x axis, this is y axis. the points are 0 to 10, मतलब 10 पॉइंट्स हमें यहाँ चाहिए होंगे. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 2 का इंटरवल ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10. सेम हियर. First point is y is 10, x is 0, this point, and the next point is 10 comma 0. It means x is 10, y is 0. These are the 2 points we have plotted, and from these points we plot a line. We have drawn this line. This line is x plus y equals to 10. This is the first line. Now for the second line, you can see here, second line is 4 comma 0. It passes through 4 comma 0. It means this, and 6 comma 2. When the value of x is 6, the value of y is 2. Now plot this one. हमने इसको plot कर दिया. The second line is what? Second line is x minus y equals to 4. जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा वहां पर. मैं तो रफली प्लॉट कर रहा हूं. तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब ग्राफ पर यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर गए, दोनों लाइनें. अगर दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर, यही इसका सॉल्यूशन हो गया. अगर ये इसका सॉल्यूशन हो गया, हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये आप पॉइंट रीड करो, 6 और 8 के बीच में कौन सा पॉइंट आ गया, 7. 2 और 4 के बीच में कौन सा पॉइंट आ गया, 3. So you can see here 7 3 is the solution. अगर 7 3 solution है, you can see here that is number of girls. अब x क्या था, number of girls. So number of girls are 7 and number of boys are 3. So this is the solution. You can check. अब ये देखो जो तुमने आंसर निकाला है, क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज 3 है, दोनों को ऐड कर दो, 10 आ गया. यस. अब दूसरी कंडीशन में देख लो. सर ग्राफ के अंदर जो आपने प्लॉट करा हुआ है वो किस तरह किया है? एक मिनट फिर से बोलो बेटा. जो आपने ग्राफ के अंदर प्लॉट किया है 4 और लाइन के बाद जो 6 और 8 के बीच में लाई कर रही है, वो किस तरह किया, दोबारा समझा दो. इन दोनों लाइंस को कैसे प्लॉट किया है? हाँ जी ठीक है. देखो x 0, जैसे आपने ये x फर्स्ट,
हाँ जी x0 y10, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, x0 मतलब x0 यहीं पर है ना, y10 मतलब ऊपर की तरफ चले गए। अब फिर हाँ जी 10 0 का मतलब हमने x एक्सिस पर 10 पर गए, और y0 मतलब ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे जाना, यही पॉइंट हो गया। अब ये दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट 4 0, x के लिए 4 y0, मतलब हम पहले x पे 4 पहुंच गए, y0 मतलब ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे जाना, यही पॉइंट हो गया हमारा। अब x की वैल्यू 6 देन y2 है, इसका मतलब आप पहले आ जाओ 6 पे, 6 पे आ गए, y की वैल्यू +2 है, +2 मतलब ऊपर 2 पॉइंट चले गए। पहले हमने x को रीड करना, फिर हमने y को ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग हमने ऊपर नीचे मूव करना है। तो ये सब चीज तो आपने 9th में सीखी है, 8th में सीखी है, तो पॉइंट्स को नहीं कैसे, सर, मैं पूछा ये नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज आपने बताया, ये किस तरह बताया, ये दोबारा बता दो। हाँ ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हाँ कर जी रही तो सर। हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, प्लॉट कर दी, और यहां से पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप जब इसको ग्राफ पर रीड करोगे तो यू कैन सी ये 6 और 7 के बीच वाली लाइन पर कट करेगा, 6 और 7 के बीच में, सॉरी 6 और 8 के बीच वाली लाइन पर कट करेगा, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, 7 आएगा, और 4 और 2 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, 3 आएगा। तो यू कैन चेक फ्रॉम योर ग्राफ ओनली। तो आप देख सकते हो ये x की वैल्यू 7 आ गई है और y पर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7, नंबर ऑफ बॉयज आर 3। नाउ सी द नेक्स्ट वन। So first question, first part we did, second part I'll leave for you, okay, so you will try yourself now। अब हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो बुक्स अपने सामने रख लो और पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of equations intersect at a point or parallel or coincident। मतलब लाइंस कौन से टाइप की हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं। मान लो मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट अज्यूम किया यहाँ पे, दिस इज 5x माइनस ऑफ 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड लाइन हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में अज्यूम कर रहा हूं आपके साथ, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसका। तो आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1/a2। पहले हमारे पास a1 और a2 क्या होगा, a1 और a2 these are the coefficient of x, so 5/7। a1 is the coefficient of x in first equation and a2 is the coefficient of x in the second equation, so 5/7। अब इसी तरह से हम b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। -4/6 सिंप्लीफाई कर दें, दिस इज 2/3, एंड सिमिलरली c1/c2 फाइंड आउट करेंगे, c1/c2 इज 8/-9। अब हमारे पास all the things we have, a1/a2, b1/b2, c1/c2 all we have, okay। now check here कि अब a1/a2, b1/b2 आपस में इक्वल है, no, this is 5/7, this is -2/3। so what you check here, here a1/a2 is not equal to b1/b2। अब a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं, ये कौन सी कंडीशन थी तुम्हारी, याद करो, this is the condition for which, yes, the lines are intersecting, these lines are intersecting lines, okay। so you got the method। तो किस तरह से हम करेंगे, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। so this is a very simple question। in this type of question what you will do, you will find out the a1/a2, b1/b2 and c1/c2 and check the three relations you have। तो ये किस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, you can check from this, you can see here the first two relations are not equal to each other, मतलब फर्स्ट वाला रिलेशन इंटरसेक्टिंग वाला फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब these lines are intersecting lines, this is the unique solution, the system is consistent। जो भी पूछेगा according to this you will give the answer। now see the question number third। so first part is enough for this, rest two parts you will try yourself and find out whether the
lines are of which type? Mr. Ajay, mute your mic beta if you want to say something. यस yes. सर वीडियो क्लियर नहीं हो रही, मेरा नेट में प्रॉब्लम है. हाँ तो you will get the recording, no problem. Okay, at evening time I will try post at 3 p.m. ओके, You can see from this. थैंक यू. Now question number third question, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था. कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं? जिसके पास एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो. तो वो कौन से केस थे? हमारे पास दो लाइनें. कौन कौन से? इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन एंड दैट इज कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो ये दोनों केस हमारे कंसिस्टेंट के हैं. एंड द पैरेलल लाइंस हैविंग नो सोल्यूशन, सो ये कौन से टाइप में आ गया? ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आ गया. तो हमने यहाँ पर यही चेक करना है ये सिस्टम किस टाइप का है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, तो सी हियर थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. This is 3/2 x plus 5/3 y. अब 7 इक्वल्स टू उधर है, मैं इधर लाऊंगा तो -7 आ गया, बिकॉज वी हैव टू चेंज फर्स्टली इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस? ax plus by plus c equals to 0. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज ऑल द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन further we will find out the value of a, b and c, then we will do the further calculations. Now see the second equation. This is 9 of x minus of 10y minus of 14 equals to 0. Now we have two equations. मैंने दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है, बुक से देख लो आप भी, ठीक है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस वन, a1 upon a2 की वैल्यू क्या होगी, b1 upon b2 क्या होगा, c1 upon c2 क्या होगा. So first of all we will find out the value of a1 upon a2. What is a1? 3/2 divided by 9. This is 3/2 divided by 9 and this is 3/2 divided by 9. So we can write like this. अब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, this can be written 9 upon 1. So this can be written as 3 upon 2 divide है, it can be changed into the multiply and we will write here reciprocal of this one. This is 3 1s are 3 3s are 9. On simplifying we get this value is 1/6. Similarly we will find out the value of b1 upon b2. अब b1 is what? 5/3. b2 is what? minus of 10. This is 5/3 is divided by minus of 10. Minus 10 मतलब minus 10 upon 1. We can write like this. Then 5/3 multiplied by minus 1/10. Cutting कर दो. 5 2s are 10. This is minus 1/6. You can see here. तो a1 upon a2, b1 upon b2 हमने निकाल लिया. Now we'll find out the value of c1 upon c2. c1 is minus of 7, c2 is minus of 14. सॉल्व कर देंगे, 1/2 आ गया. अगर ध्यान से देखें तो a1 upon a2 value is 1/6, b1 upon value is minus 1/6. Both are not same because this is positive 1/6, this is negative 1/6. So what you have here, observe, this is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Not equal, it means what? The system having intersecting lines. Intersecting lines means unique solution. Unique solution, it means consistent system. So you can directly write here. Therefore the given system is consistent, because you know this is intersecting line, unique solution, so system is consistent. All of you understood these things? I think the second question and third question both are same, method is same, but it is asking about different lines, it is asking about different system. क्वेश्चन वही है, करने का मेथड वही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया थोड़ा सा. All of you understood? Anyone having problem? Yes sir. Yes Arjit, no problem beta? sir. No. Okay. Dushal, are you listening me? Mr. Dushal. You are not listening. Okay, very good. You are joining the class but not listening. Lakshmi, are you listening, beta? Yes, sir. Very Yes, good. sir. Understood all the things? Yes, sir. Okay, good. Jyoti Sharma,
Yes, sir. Okay, good. Some students are listening very carefully and some are sleeping, I think. Now see the next. इसका एक पार्ट और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ. Which one is the? This is fourth part. See the fourth part. This is 5x minus of 3y. 11 उस साइड है equals to के इधर ले आओ, because we have to firstly change to the standard form. Then this is minus of 10x plus of 6y, and this is minus 22. This is plus 22 equals to 0. These are the two equations we have here. It is okay. Two equations have. And now further we have to do the same. A1 upon A2 we have to find out. This is 5 upon minus of 10. This is minus 1 by 2. Again we have to find out the value of B1 upon B2. What is B1? B1 is given minus of 3 upon of 6. This is minus 1 by 2. Similarly, we will find out the value of C1 upon C2. C1 is minus of 11 upon of 22. This is minus 1 by 2. So what do you see here? A1 upon A2 value is 1 by 2 minus. B1 upon B2 is minus 1 by 2. C1 upon C2 is also minus 1 by 2. All are same. So what we have observed here? Here we have observed that is, this is A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. So what type of these lines? Hanji, Mr. Arjit, can you tell me beta? Which type of these lines are? Anyone? कोई मेरे को बता सकता है? Which type of these lines are? Coincident lines. Yes, very good. These are the coincident lines. If coincident lines, the which type of system is this? Consistent. Yes, this is consistent. So you can write here, therefore the given system is consistent. Hope you all understood कि हम इस क्वेश्चन में आखिर कर क्या रहे हैं. बहुत ही इजी है, कोई भी हमें ज्यादा यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं करनी. सिंपल कैलकुलेशन है. वी हैव टू फाइंड द थ्री रेशियोज एंड देन वी हैव टू कंपेयर कि ये कौन से रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट द आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 you will see. In the question number 4, if you will read from your book, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? It means further we have to check the system is consistent or inconsistent. आगे भी हमें solve करना है. If consistent, obtain the solution graphically. अगर consistent आ गया, then we have to solve it by graphical method. Okay. So here I am going to discuss third part with you. This is 2x plus y minus 6 equals to 0, and the second one is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. You can see here we have two equations here, the first one and second one, and both the equations firstly we have written in the standard form, and then after what we have to find out, we have to check whether the system is consistent or not. Then how we can do? We will do the same procedure here. We will find out the value of a1 upon a2. So we will see here what is a1 upon a2. This is 2 by 4, 1 by 2. It is okay. Similarly, we will find out the value of b1 upon b2. This is 1 by minus of 2. And next we will find out c1 upon c2, minus 6 upon minus of 4. This is 3 by 2. So all the values now we have. Now we will see which relation they are following. So here you can see here कि a1 upon a2 की value जो है 1 by 2 है, b1 upon b2 minus 1 by 2 है. Equal नहीं है. So you can see here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So we can say this system is consistent. So you will write here, therefore the given system is consistent. Okay. लेकिन अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. अब हमें ये फाइंड आउट कर लिया सिस्टम कंसिस्टेंट है, देन नाउ वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकल मेथड. अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सी हियर हाउ टू सॉल्व. एज फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड, फर्स्ट क्वेश्चन हमने नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट किए थे ग्राफिकल सॉल्यूशन से. यहाँ पर भी हमने सेम वही करना है. तो सी हियर फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे.
तो इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे एंड उससे हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो सही यार, तो वैल्यू ऑफ हम क्या कर रहे हैं, y की 0 पुट कर दें, y के लिए हमने 0 पुट कर दी, जैसे y 0 हो गया 6 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, x के लिए 3 आ गई। अब हम x के लिए 0 कर दें, x 0 कर दिया, ये खत्म हो गया, y के लिए 6 हो गई। एंड सिमिलरली अब हम सेकंड लाइन के लिए चल पड़ते हैं, सेकंड लाइन के लिए भी हम निकाल लेते हैं पॉइंट्स फॉर लाइन सेकंड, दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड। सेकंड लाइन हमारे पास ये रही, ठीक है। हमने यहाँ y के लिए 0 पुट कर दी, जैसे y 0 पुट करेंगे खत्म हो गया, -4 उधर गया, प्लस हो गया, 4 से 4 डिवाइड हो गया, वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब हम y के लिए यहाँ क्या पुट कर दें, मान लो y के लिए हम 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4, 4 आ गया, -4 -8 हो गया, -8 उधर गया, +8 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, वैल्यू इज 2। तो यू कैन सी यार क्या आ गई, x के लिए 2, y के लिए 2, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए इस तरह से। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हम पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं, और हम ये सब कुछ प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ। तो आप रफ पे भी सॉल्व करके इसको फाइंड आउट पॉइंट्स को कर सकते हो, देन यू कैन पुट इन योर दिस टेबल। अब ये टेबल हमने बना लिया है, अब वी कैन रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। So we will take appropriate scale on this graph. So you can see here maximum value is 6, तो हम 1 1 का ले लें, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 here also. तो फर्स्ट पॉइंट इज x के लिए 3, y के लिए 0, दिस इज 3 0, ये पॉइंट आ गया। x के लिए 0, y is 6, दिस पॉइंट इज, अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारी कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी, दिस इज 2x + y - x = 0, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं। सेकंड लाइन पॉइंट x is 1, y is 0, दिस पॉइंट, x is 2, y is 2, दिस पॉइंट। तो ये दोनों लाइनें यहीं पर इंटरसेक्ट कर गई। यू कैन सी हियर व्हाट हैपन, ये 2 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें दोनों, कहां पर, 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां इंटरसेक्ट करेंगे आप ग्राफ में बनाओगे, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, बिकॉज आई एम मेकिंग रफ, सो मेरे पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन व्हेन यू विल प्लॉट ऑन द ग्राफ देन यू विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन कि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन 2 2। so what you get here, you get here the value of x equals to 2 and the value of y equals to 2, and this is the answer. It means this is the graphical solution we find out here कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारी दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हम उसके सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं इस तरह से। x और y के लिए हमने फाइंड आउट कर ली है। हाँ जी बेटा, एनीवन हैविंग द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, तो वहां पे किसी को प्रॉब्लम हो, he or she can ask, otherwise we move to the next question. Some students are still coming. The class is going to over in the 10 minutes and some students are joining this time. सर मेरे को प्लॉट करना समझ नहीं आ रहा थोड़ा। कौन है बेटा, who is this? Can you tell me? अमीशा। अमीशा। हाँ अमीशा, क्या नहीं प्लॉट करना आ रहा मेरे को बता बेटा। सर ये 2x + y - 6 = 0 है ना सर, इसका प्लॉट करना है। बेटा कुछ नहीं करना, आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखो पॉइंट्स निकालने आ रहे हैं, पॉइंट्स नहीं निकालने आ रहे वो भी बताओ, मैं समझा दूं। पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है कि प्लॉट करने में प्रॉब्लम आ रही है? प्लॉट करने में। पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं है कोई? सर नहीं सर, पॉइंट्स जो निकाले आपने वो कोएफिशिएंट्स वगैरह लिए हैं। और नहीं कुड़िए, ऐसे थोड़ी होता है। व्हाट यू आर सेइंग, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स कैसे लिए हैं आप देखो, यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू कुछ पुट की है x की और y की वैल्यू कुछ निकाली है। सी हियर, दिस इज द रफ वर्क वी आर आई एम डूइंग फॉर यू ओनली। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दी, पहले हम y की 0 पुट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं पहली इक्वेशन में, y 0 हो गया तो 2x, ये 0 हो गया, खत्म हो गया, -6 उधर ले जाओ, इक्वल्स टू 6 हो गया। बात समझ आई? देन x की वैल्यू 6/2 3 आ गई।
अब इसी तरह से ओके सर। अब हमने x की वैल्यू 0 कर दी, देखो यहाँ पे मैंने x 0 किया है, अब x की वैल्यू यहाँ 0 करो, जी सर। ये हो जाएगा 0 प्लस y माइनस 6 उधर चल जाएगा, 6 आ गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये पॉइंट हम इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट थोड़ी लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। हाँ, तो सेम हम लोग इस सेकंड इक्वेशन के लिए भी इस तरह से पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पॉइंट निकालना आ गया, प्लॉट करने में प्रॉब्लम कोई? चलो प्लॉट No, करना sir. प्लॉट करना भी बता दे रहा हूँ, है ना। सही है, प्लॉट कैसे किया मैंने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब एक पॉइंट आ गया 0 3। अब इसको प्लॉट करना तो आता ही हमको, 3 कहाँ होगा, यहाँ पर हो गया, y Yes, की वैल्यू sir. 0, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यही पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या Yes, है, sir. 0 6, x is 0 y is 6, तो मतलब हम x एक्सिस पे कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, y एक्सिस पे ऊपर चले गए 6 पॉइंट तक। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन प्लॉट कर दी। सिमिलरली दूसरी लाइन को हमने इस तरह से कर लिया, x के 1 y 0, x 1 किया y 0 यहीं पर हो गया, x के 2 y के 2, मतलब हम x की वैल्यू 2 पर गए राइट हैंड साइड, और फिर उसके बाद क्या 2 y की वैल्यू भी 2 है, पॉजिटिव 2 है, मतलब ऊपर की तरफ गए। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या कि ये दोनों लाइनें जहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, वी कैन सी हियर इट विल कट x एक्सिस at 2 and y axis also at 2, तो x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई, तो हमने लिख दिया the value of x and y are 2 and 2। ओके सर। सर Thank जैसे you, हमने sir. पिछले साल 9th में हमने थर्ड चैप्टर किया था जिसमें हम 4 क्वाड्रेंट बना के लिखते थे क्वेश्चन। फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा जरूरी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर आप वैल्यू रीड करो, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सारी पॉजिटिव में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे, इसका मतलब नो नीड टू तो ड्रॉ अगर सर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा अगर कभी आ जाए माइनस में तब हम हाँ 4 कोई नहीं बात नहीं, देन करेंगे? यू कैन टेक अदर क्वाड्रेंट्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ, सी द नेक्स्ट। Okay, few minutes are left. So last question I am going to discuss with you today. This is the question number 5. So this is the last question for today exercise. So up to here, this is your duty to complete. Whenever you have problem, then you ask with your concerned teachers. Half the perimeter of rectangular garden. अब rectangular garden है, so we know that it having some length and breadth. So first of all, let the length of rectangle. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x व्हाट मीटर हम लेट कर लेते हैं, बिकॉज जो पेरीमीटर की बना है वो मीटर में की बना है। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी हम लेट कर लेते हैं, तो ब्रेथ हम लेट कर लेते हैं y मीटर। और हमें गिवन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 36 meters. Half of the perimeter of rectangle is given 36 meters. प्रथम अरोड़ा माइक म्यूट कर लो बेटा। हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास व्हाट, पेरीमीटर में पता है फॉर्मूला, दिस इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है 2 into लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, दिस इज इक्वल्स टू 36, 2 2 कैंसिल आउट, वी गॉट x plus y इक्वल्स टू 36, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट हियर। एंड सेकंड इट इज सेइंग, और दूसरा आगे बढ़ो, अगर हम आगे बढ़े इक्वेशन को, आगे कहता है whose length is 4 मीटर। अब इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यही हमसे कह रहा है जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ हमें दी हुई है x एंड ब्रेथ इज y, तो y इधर ले आओ, x minus y equals to 4. This is the second equation now we have. These are the two equations we have. अब हमें भी इसका solution find out करना है. We are going to find out the solution with the help of graphical method only, because अभी तक हमें कौन सा मेथड आता है, only graphical method आता है. So we are using only graphical method. Now see the next. अब ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, तो फॉर फर्स्ट लाइन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर फर्स्ट लाइन तो मैंने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, सही है। अगर हम x के लिए 0 पुट कर दें, देन y विल बी व्हाट 36, x इज 0, y 36, y 0 पुट कर दो, x 36 हो गया।
So these are the very simple points. Now for the second line, again we are going to find some points. अब यहां पर हम y के लिए 0 पुट कर दें. If y 0 कर दिया, x के लिए 4 आ गई. y के लिए हम क्या करते हैं, 4 कर देते हैं. 4 y वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, तो 4 उधर गया, 4 + 4 8 आ गया. So what you have seen here, we have some points. This is your choice, you can use any points. This is my choice, I have taken these points. Okay, तो उस पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Any points you can take. Now you can see here, यहाँ पर points हमारे पास 4 8 है, यहाँ पर 36 है. इसका मतलब मैक्सिमम 36 तक जा सकते हैं. तो इसके लिए मैं अप्रोप्रिएट स्केल यूज करूंगा 10 की. 10 20 30 40 सेम, सॉरी 30 not 36. 10 20 30 40. I have taken these points. Now see here, अब पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, 0 36, x 0 y 36. तो it might be here. And अब x 36 y 0 ये यहां पर हो गया. ग्राफ पर आप प्लॉट करोगे, you will get the exact values. Okay, so here this is the first line. लेबल कर देते हैं. What is the line? This is x plus y equals to 36. Now the second points are line के points हमारे 4, 0, x के लिए 4 y 0. This is the first point. x is 8 y is 4, x is 8 y is 4. This is the second point. अब इसको फिर से प्लॉट कर देते हैं हम. You can see here like this. Sorry, ये इस तरह से दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई. This line was, this is x minus y equals to 4. So they have two lines and this is the intersecting points. अब हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो. अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कहां पे कट कर रही है, 20 पे. इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज 20. अब यहाँ पे प्लॉट करो तो यू विल गेट दिस इज, ये कहां कट करेगी, 16 पे. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यू गॉट हियर आंसर x की वैल्यू 60, सॉरी 20, y की वैल्यू 16. सो लेंथ तुम्हारे पास आ गई. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 16 मीटर. दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर. अब जो आंसर निकाला उसको चेक भी कर लो. कैसे चेक करेंगे, यहाँ पुट कर लो, किसमें, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में. x के लिए 20, y के लिए 16, 20 + 16 36 आ गया. यस, यहाँ भी चेक कर लो. 20 - 16, 20 - 16 4 आ गया. यस 4. इसका मतलब जो आंसर आपने फाइंड आउट किया, दिस आंसर इज करेक्ट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द थिंग्स. किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं.